वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट हिना महमूद और चलते चलते प्रोग्राम में आज हम बात करने वाले हैं। गैस को मज़ीद महंगा कर दिया गया है। 406 रुपये फ़ी MMBT जो है इसमें इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। पहले खाने का तेल महंगा, पेट्रोल महंगा, उसके साथ साथ आटा नापैद और मज़ीद महंगा, और उसके साथ साथ मुर्गे की प्राइस में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। अनाज की प्राइस में भी जो मुनाफा मुतवक्के है, लेकिन गैस की तो मंजूरी दे दी गई है। तो आज आवाम से जाने की क्या सर्दियों में गैस आती है, और अगर नहीं आती तो बिल कितना आता है, क्या गैस के आने या जाने से बिल पे कोई असर पड़ता है या नहीं, या बिल जो है वो रूटीन में आना ही आना है। इसके अलावा मज़ीद जो गैस महंगी की गई है इसके हवाले से आवाम से बात करेंगे। उनकी तरफ बढ़ते हैं और बातचीत का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, की ना है थोड़ा? ये हाँ मेरा नाम सर कहते दी ज़िंदगी गुजर रही है? बस जिंदगी अच्छी नहीं गुजर रही, माड़ी गुजर रही है। कोई निक्का जिहा काम विड्या सी वो भी गया, साडी ਜਿਹੜੀ है वो भी है ना महंगी तो महंगी की जाने लगी, छड्डण ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਲੱਗੇ ਫਿਰਨੇ। हाले 409 रुपये फ़ी MMBT होर महंगी करती है। अच्छा तो ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਮਰਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਿਪਸ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਗੈਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤੇ 2 ਕਿਲੋ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਨਾਫਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੁਨਾਫਾ ਆ ਜਾਂਦਾ 100 ਰੁਪਈਆ 100 ਰੁਪਏ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਚ? ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਚ ਗੈਸ ਪਿੱਛੇ। गैस पिछले सर तो बहुत महंगी है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, आटा मिल नहीं रहा, घर च होर कमाने वाले है? ਭੁੱਖ ਮਰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਮੁਕਾਮ ਨੇ ਸਾਡੇ? 100 रुपए च की करते हो? 100 ਰੁਪਈਏ ਚ ਵੇਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। 100 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲਾਈਏ, ਆਂਡੀ ਚ ਲਾਈਏ, ਰੋਟੀ ਚ ਲਾਈਏ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਿਆ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਬਣਾਈਏ, ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ, ਸਿਗਰਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਾਂ ਘਰੂਰਾਂ ਪਰਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। किन्ने जी ने कर दे? ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ 5-7 ਕੀ ਹੈ, तो 7 जी है ने, तो होर कोई काम करता है? ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਸੂੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ। सारे मिल के एक दिन के किन्ने पैसे कमाने? ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ 1000-1200 ਰੁਪਈਆ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, 1500-1600 ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ। फिर की करते हो? मतलब 1500-1600 जो खर्चा है, एक दिन 2 दिन 3 दिन तो बाद तो फिर मसला हो जाएगा। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਵਾਨੀ ਉਧਾਰੀ ਲੈ ਲਈ, ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 100 ਦਿੱਤਾ ਤੇ 50 ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਆਇਆ ਤੇ ਵਕਤ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। वक्त पार कर लिया। सर वोट किन्नू देंगे? ਹੋਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਤੇ ਦੇਣੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ। पहले किन्नू 2018 च किन्नू दिते? 2018 ਚ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੋਚੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਜੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 200-300 ਰੁਪਈਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦੀ। सिर्फ खाना पीना करिए, जरूरी चीज़। ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਫੁਲਕਾ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਲਈ ਇਹ ਕੁੜੀਆ ਵੀ ਦਾਲ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਪਾਲਕ ਬਣੀ ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਫੁਲਕੇ ਦੇ ਲੈ ਲੈ। ਕੋਈ ਵਕਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਲੀਲੋ ਜ਼ਲੀਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। तो सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ नवाज शरीफ मुल्क सही करेगा कि इमरान खान? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੀਡਰ ਤੇ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਅਫਜ਼ਲ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। सर दोनों सकते ने, पर अगर करना चाहन? ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਦੇ। ਸਰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਤੰਗੀ ਹੈ। ਤੰਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹਾਲ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ। ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਗਰੀਬਤ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ, ਗਰੀਬਤ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਲਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਮਤਲਬ। ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਬੱਲੇ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੋ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਮਤਲਬ ਐਸਾ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੀ ਰੱਖੀ, ਅਗਲਾ ਵੋਟ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦੀ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਵੋਟ ਉਸ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਮ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਾਂ ਤੇ ਲੀਡਰ ਅੱਛਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਅਬ ਤਾਂ ਆਖਿਰਤ ਤੱਕ ਚੁਣ ਲਿਆ ਫਿਰ ਲੀਡਰ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਹੈ। ਲੀਡਰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਮਾਰਨ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛ ਲੈਦਾ, ਅਸਾਂ ਮੁੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ? ਜਿਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲੈਗਾ। ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਪੁੱਛੇਗੀ ਜੀ। ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਤੇ ਛੇਤੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਦੀ ਪਕੜ ਜਾ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਮਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਕੁਦਰਤ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ। ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ, ਬਈ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਲਾਲਤ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੋ,
ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੂਜਿਆਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਮਰਨਾ ਹੈ। बहुत शुक्रिया सर ਤੁਹਾਡੇ टाइम ਦਾ। तो नाजरीन कुदरत पे छोड़ दिया अवाम ने, अवाम के बस से बाहर हो चुकी है बात। अब हुक्मरानों को कुदरत पूछे जिन्होंने ये तमाम तर सोसाइटी का ये हाल किया। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? मुख्तियार जी। सर गैस और महंगी कर दी, हाँ जी, गैस और महंगी कर दी, गैस और महंगी कर दी। महंगी तो कीती जा रही, महंगाई कीती कर ईद महंगी कर दी, 400 दे दी। जी। गरीब बंदे क्या करनगे? गरीब बंदे कुछ भी नहीं कर सकते जी। इस मामले में की कर सकते? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਟਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਨ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। मुर्गी कितनी महंगी है इधर? ਤਕਰੀਬਨ 550 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 550 से ऊपर जाए। आटा मिल रहा है? ਜੀ। ਆਟਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਨ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ 1050 ਦਾ ਤੋੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ 10 ਕਿਲੋ ਦਾ। जो गवर्नमेंट का है? ਜੀ ਜੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ का है। तो सर आप क्या करते हैं, क्या कमाते हैं? ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਲ ਫੈਸਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। आप तो फिर सही पैसे कमा रहे होंगे। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। 350 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 350 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। एक पूरे दिन में 350 रुपए। 350 एक प्रोग्राम दी। और एक दिन में कितने प्रोग्राम हो जाते हैं? एक ही होता है, जो महंगाई चली खड़ी एक ही प्रोग्राम होता है। तो अब क्या है, एक पर बंदा कितना, पर हेड कितना ले रहा है शादी हॉल वाला? वो शादी हाल वाला ले रहा है 500 रुपया जी। पर हेड खाने के साथ? हाँ जी। तो आपको 350 बस पूरे दिन में? नहीं नहीं, वो मालक ਜਿਹੜਾ है ना वो दे रहा 500 रुपया को, ठेकेदार सानू 350 दे रहा है। अच्छा, पर हेड दे रहा है ना, आपको तो पूरी दिहाड़ी एक दिन की मिल रही है हाँ जी। और उनको तो पर हेड मिल रहा है, मतलब एक एक बंदे का 500। हाँ जी। तो सर कैसे गुजारा करते हैं? बस जी, वो गरीबी तो चला खड़ा निज़ाम चलाई खड़े ऐसी भी। कितने लोग हैं घर में? घर पे तकरीबन 7 लोग हैं। 7 लोग हैं। कितने कमाने वाले? कमाने वाले सिर्फ 2 ही है। तो दूसरा कितने कमाते हैं? दूसरा भी ये शादी हाल ची है। वो भी 350। तो 700 रुपए में कैसे गुजारा? बस गरीबी जो है आटे का तोड़ा भी नहीं आता 10 किलो का जी। सर रोज दिहाड़ी लग जाती? हाँ जी, रोज एक लग जाके 3 छुट्टियां गुजारी ने, फिर आज ही तो कम है गए। आटा इतना महंगा, 700 में क्या 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 खरीदते हैं उन पैसों? बा कुछ भी नहीं आता जी, एक ही चीज आती है बात। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 700 ਰੁਪਏ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਘਰ? ਕੀ ਆਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਟੇ ਦਾ ਤੋੜਾ 10 ਕਿਲੋ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਉਹ ਤਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਸੌਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਖਰਚੇ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਖਰਚੇ। कि दाल भी लइए तो पाइया वो भी तकरीबन 200-250 रुपए का पाइया है दाल भी। जो पाइया ले जाएगा तो बस यही कुछ बचना है। गैस है घर में? हाँ जी, गैस लगी हुई है? गैस नहीं लगी हुई। तो कितने की गैस डलवाते हो? गैस तकरीबन 250 रुपए किलो हैगी। किलो कितने दिन गुजारते हो? किलो की दीवार ही नहीं कटती, एक दिन नहीं निकलता है किलो नाल। तो सर ये तो सीधा सीधा तो फिर 400-500 तो इसी पे लग गया। हाँ जी, 250 रुपये की गैस लगती है, बाकी की आता है पीछे 500 रुपया रहता है। हुकूमत को क्या कहेंगे? हुकूमत ने ये कहने के जो बच्चे ज़्यादा पैदा करेंगे तो फिर महंगाई है, बच्चे मन किमें पालेंगे। सिलसिला इस गल है। और बच्चा तो आना तो उन्हें दादा नसीब खाना ही खाना है। आप कमा के खान गए फिर गल तो यही है ना। लेकिन पढ़ाएंगे नहीं बच्चों को फिर? पढ़ाएंगे जी नहीं, उन्हें अगर चलती पई महंगाई होंगी भी बढ़ाएं तो साफ ज़ाहिर नहीं पढ़ नहीं आपके सकते। 2 बच्चे हैं तो आप उनको अफोर्ड ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं, उनको पढ़ा लिखा सकते अच्छे तरीके से बढ़ाएंगे जो, मगर फीसा भी लगनी है। वो 700 रुपया एक प्रोग्राम का है, 350 रुपये तो की बढ़ाएंगे बच्चों को। हैं। हुकूमत को कहे ना, वोट किसको देते हैं? कीमत को सारे जिन्हों जड़ा जितदा है वोट तो हर पास ऐसी बल्ले नहीं दिते हैं। तो इमरान खान बेहतर कर सकते हैं सर? इमरान खान बेहतर की करेगा? इमरान खान आप ही चला गया, बेहतर उन्हें क्या करना है? लगता है वापस आएंगे? उम्मीद है वापस आएंगे। खान साहब अगर आपको देखें वीडियो के थ्रू, उनको क्या कहेंगे? कैमरे की तरफ देखें। कैमरे की तरफ यही कह रहे हैं भी खान साहब आए तो हालात अच्छे करें। खान साहब को कहें जी। खान साहब से कहते पे हैं भी आए ना हालात अच्छे करें, ਅਸੀਂ वोट उन्हें ही देने हैं खान साहब ने, आगे भी उन्हीं को देना है। आगे भी उन्हें ही देना है। चलें जी, बल्ले का वोट है और हमेशा उन्हीं को देना है। तो हालात खान साहब उनके ख्याल में आपने बेहतर करने हैं, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे और किस तरीके से जो है सूरत हाल बेहतर होगी। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? जी तारक अली। तारिक साहब क्या करते हैं? जी मैं इधर शादी हाल में काम करता हूँ, बैटरी का जी। केटरिंग का कितने दिहाड़ी देते हैं आप? जी तकरीबन एक फंक्शन की 450 रुपये है। उनको 350 दे रहे हैं, आपको 450 की। जी वो मैं इनका हेड हूँ ना इसलिए। अच्छा, आप हेड है तो सर कितने रोज के 450 बस के? ज्यादा फंक्शन हो जाए तो ज्यादा पैसे? नहीं डबल फंक्शन हो तो उसका फिर 900 रुपये मिलते हैं जी। तो घर में गैस लगी हुई है? जी नहीं लगी, इधर की रैश नहीं है, हमारी बहावन नगर की रैश है जी। भावनगर में गैस नहीं है? नहीं उधर नहीं है जी। तो यहाँ पर कहाँ रहते हैं? जी यहाँ पर ये सामने फैसल मैरिज गार्डन में।
शादी हॉल में ही रहते हैं, वहाँ पे गैस है? हाँ जी, वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे भी नहीं है, क्यों? उन्होंने लगाई नहीं हुई है। वैसे तो इधर मौजूद है ना, पर उनका कनेक्शन नहीं है, सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं गैस मजीद महंगी हो, जी। क्या सोच रहे हैं, कैसे गुजारा होगा? जी गुजारा तो बहुत मुश्किल है ना, ये हुक्मरानों की मेहरबानी है ना, इसलिए गैस महंगी। कौन से हुक्मरान को वोट देते हैं? जी मैं तरीके लबैक को वोट देता हूँ। आपको लगता है कि साद रिजवी साहब जो है महंगाई में कमी ला सकते हैं? जी ला सकते हैं। कैसे? कैसे जी? वो करप्शन को रोक कर जी, करप्शन को रोक कर? करप्शन को कैसे रोके? करप्शन को जी वो जो इस्लाम के कवानीन हैं वो लागू करेंगे तो इंशाल्लाह जी। कितने अरसे में लागू कर लें? जी तकरीबन 1 साल में इंशाल्लाह वो निज़ाम को भी। साल में महंगाई कम कर देंगे तो आटा कितने का मिलेगा फिर तहरीक लब्बैक के दौरे हुकूमत में? जी हमें 2000 रुपये फी मान मिले हमें। लेकिन तहरीक लब्बैक के दौर में कितने का? वो मैं उनकी बात कर रहा हूँ तरीके लबैक। 2000 रुपए का मान नहीं ले लिया आपने भाई? अच्छा, पेट्रोल कितने रुपए लीटर होगा? पेट्रोल तकरीबन 150 रुपये। 150 रुपए होगा। हाँ। अच्छा, और ये जो घी है, कुकिंग ऑयल, ये कितने का मिलेगा? ये 300 रुपये। 100 रुपए। तो गैस जो है, जो अब 409 रुपए मजीद महंगी कर दी है MMBT, वो कितने का सिलेंडर फुल हो जाएगा? 2 किलो का अगर सिलेंडर हो, 2 किलो गैस कितने की? ये वो भी सस्ता हो जाएगा, हाँ। तकरीबन कुछ तो कमी आएगी ना उसमें। हाँ जी। सबसे पहला काम क्या चाहेंगे अगर वजीर आजम बना दिया जाए साद रिजवी साहब को, आपके लिए करें? जी वो इस्लाम के कवानीन को लागू करेंगे इंशाल्लाह। ये तो खान साहब भी कहते हैं कि रियासत मदीना बना दो। वो खान साहब कहते हैं ना, वो साद रिजवी नहीं कहते हैं तो इंशाल्लाह करेंगे भी। साद रिजवी और इमरान खान के रियासत मदीना में क्या फर्क है? जी उनका बहुत फ़र्क है जी। क्या फर्क है? क्या फ़र्क है? वो कहते हैं करते नहीं, ये इंशाल्लाह कहते हैं तो करेंगे भी। हाँ जी इंशाल्लाह। साद रिजवी साहब को मैसेज दे दे जी अगर आपकी वीडियो देखें तो क्या कहेंगे? जी साद रिजवी साहब के लिए मेरा ही पैगाम है कि वो इंशाल्लाह अपनी कोशिश जारी रखें, हम उनके साथ हैं और जितनी भी हम कोशिश कर रहे हैं ये तरीके लबैक के लिए कर रहे हैं और हम इंशाल्लाह हमारी सपोर्ट तरीके लबैक के लिए जारी रहेगी जी इंशाल्लाह। और अगर आप कामयाब होते हैं तो फिर 2000 का मन आटा भी करना है, चक्की वाला या हुकूमत वाला? जी दोनों, चक्की वाला भी और हुकूमत वाला भी जी, एक ही रेट होगा जी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? जी गनी बास क्या नाम है? गनी बास गनी साहब, गैस महंगी हो गई। भाई साड़ी गैस ही नहीं आती, महंगी क्यों नहीं है? सिलेंडर नहीं बाहर है, बत्ती भी नहीं लेकिन आ रही ते गैस नहीं बालते फिर की करते? फिर चूल्हा ही बाली दा। लगड़ा सस्तियां ने? नहीं लकड़ा भी नहीं सस्तियां। किन्ने दी मन है? ये 900 रुपए किलो दे रहा गिल्ली और 1200 रुपए सुक्की दे रही हैं। ਤੇ ਗਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? गिल्ली भी नहीं चलती और सुक्की एक जलाएं तो नाल चल जाती हैं। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਗਿੱਲੀ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਣੀ। नहीं है 900 रुपए किलो मन मिलती पई है। ਮਨ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? मन तकरीबन 2 डंग भी 3 ਜਾਂ 4 ਡੰਗ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਬਸ। ਤੇ ਗੈਸ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਵਾਈ? नहीं है ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਜਪੂਤ ਪਾਰਕ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਗੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ 24 घंटे? दिन 24 घंटे 1 मिनट भी नहीं आती। 1 मिनट भी नहीं आती तो बिजली आती है? नहीं बत्ती भी रात 9 बजे 7 बजे जाती है और 8-9 बजे आती है। रात 7 बजे 2 घंटे? हाँ 2 घंटे नहीं आती रात को। आटा मिल रहा है? नहीं आटा भी नहीं मिल रहा। आटा मिलता ही नहीं है तो क्या खाते हैं? चावल बस खा रहे हैं। चावल कितने अरसे से खा रहे हैं? ये बस तकरीबन हफ्ता डेढ़ हो गया। 1.5 हफ्ते तो चावल खा रहे ने। मैनू ऐ दसो वोट किहनू दिता? बोर्ड किसको वोट दिया? बोर्ड फिलहाल तो हमने जाए किया किसी को 2018 में किसको? 2000 नहीं हमने नहीं किसी को भी दिया। कभी जिंदगी में एक वोट दिया, वो किसको दिया? PMLN को देते हैं? किसी को भी नहीं दिया। शेर का ठप्पा? नहीं इमरान खान को देंगे बोर्ड। पहले किसको दिया ना भाई, पहले वाले? पहले हमने कैंसिल कर दिया, हमने किसी को भी नहीं दिया। चलें, जिसको भी आपने वोट दिया आराम आया कोई महंगाई से आपको? नहीं हमें कोई भी नहीं आराम आया, कोई भी आ जाते हमें नहीं कोई भी फर्क। इमरान खान साहब को वोट देना आपको लगता है महंगाई कम कर दें? हाँ काम करेंगे, वो आएंगे इंशाल्लाह। अगले वजीर आजम इमरान खान को देखना चाहते हैं? इंशाल्लाह। आपने वो देख लिया होगा परवेज इलाही साहब दोबारा जो है वजीर आला बन? हाँ वो वजीर आला बन गए लेकिन उनकी सीटें ही बहुत बढ़ गई हैं रात से रात। आप खुश हैं इससे? हाँ मैं बहुत खुश हूँ। क्यों खुश हैं? क्यों ये इसलिए खुश हूँ महंगाई कम हो जाएगी। वजीर आला कोई कह दें आटा नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, ऑल तो ये वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन कोई अपील तो करें। वजीर आला बस कर्जा ले सकता है बैंक से, जिधर भी जाता है बाहर भी जाता है कर्जा ले जा रहा है, अवाम का कुछ भी नहीं सोच रहा। वजीर आजम के वजीर आला शहबाज शरीफ साहब की बात जी शहबाज शरीफ की बात कर रहा हूँ। दे देना, कैमरा की तरफ देखे अगर वीडियो देखे। वजीर आजम शहबाज शरीफ हमारा ये हुक्म है ये महंगाई कम करो, लेकिन ये गरीब अवाम है ना
ये आपकी है, लेकिन ये महंगाई कम कर दो। वोट तो आपने इमरान खान को दे रहे हैं, तो वो गरीब अवाम फिर वजीर आजम की कैसे? क्योंकि हम तो उसके हैं ना जो गरीबों का सोचता है, ये बात है। जो गरीबों का सोचेगा उसी की आवाम है और उसी की होनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत जुल्म और सितम हो गया ना। आवाम को क्या कहें? हम यही बात कर रहे हैं, लेकिन अवाम भी उसकी है जो गरीबों का सोचेगा। ठीक है, बहुत हालात करते खराब। क्या है आप? हम गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं तो पेट्रोल तो बहुत ही महंगा है जी। गाड़ी कम कम चलाते हैं कि उतनी चला रहे हैं? नहीं नहीं, पेट्रोल ही हम सस्ता नहीं है, लेकिन पेट्रोल लीटर डाल लेते हैं तो गुजारा कर लेते हैं बस। लीटर से? हाँ, 1 लीटर। गाड़ी चलाते क्या क्या करते क्या है? ये हमारा रक्षा है चिंच की। अच्छा चिंची, तो ये तो बहुत जरूरी है पेट्रोल इसके लिए। तो अब आप जो सवारी है वो भी ज्यादा देती है? नहीं नहीं, सवारी तो लड़ती है, इतना किराया हम मांगते हो। चलिए, एक ना फनी सा आपने वाकया सुनाना है, ठीक है? जिस सवारी ने आपका जीना हराम कर दिया, वो आप कहोगे इसको क्यों ही बिठा लिया। नहीं, सवारियां तो बहुत लड़ती हैं हमारे साथ। आप वाकया बता देना भाई कि जिसको आपने पछताए होंगे इसको क्यों बिठाया मैं। बहुत ज्यादा ना औरतें लड़ती हैं हमारे साथ। इस उम्र की औरतें लड़ती हैं, माइयाँ लड़ती हैं, जो लड़कियाँ लड़ती हैं? नहीं, माइयां ज्यादा लड़ती हैं। उन्हें क्या इतनी महंगाई है तो तुसी इन्ना किराया मांग लेंदे हो, ये बात है। क्या कहते हैं आगे से? मैं कहा आंटी इन्ना किराया है, लेकिन महंगाई बहुत जा रही है, क्या कर सकते हैं हम। रोज ही कितने पैसे कमा लें? बस 200-300-400 अभी ये मिलता है। 400 तो शादीशुदा है? हाँ, शादीशुदा। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं, माशाल्लाह। पढ़ते हैं? नहीं, अभी छोटे हैं। छोटे हैं, पढ़ाएंगे उन्हें? हाँ, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? अब्दुल रऊफ। रऊफ साहब, गैस महंगी कर दी है हुकूमत। जी, परेशान तो हम लोग को हैं, गरीब बंदा हुआ है ना परेशान। तो जब दिहाड़ीदार जो है उसका तो कोई बच्चे 4-4 5-5 हैं उसके, अब वो कैसे गुजारा करे। 1000-1200 रुपये दिहाड़ी है, तो घर का किराया भी, मकान का भी, बिजली बिल भी, सब कुछ। अब ये जो क्या नाम है, जो इमरान खान आया उसने गलत किया है ना, गरीब बंदे का तो नहीं ना सोचा उसने। तो इमरान खान ने कैसे महंगाई कर? बात है, वो आया तो महंगाई हुई है ना। उनके जाने के बाद हुई है। उनके जाने के बाद कैसे हुई है? वो आया तो महंगाई हुई है। पेट्रोल इमरान खान साहब के ज़माने में, चले आपने मेरे सवालात के जवाब देने, ठीक है? पेट्रोल इमरान खान के ज़माने में महंगा था या अब शहबाज शरीफ साहब के ज़माने में? देखो जी, शहबाज, आपने मुझे हाँ या ना में? नहीं, मैं यही बात कर रहा हूँ। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ यो कारोबारी बंदे हैं, ठीक हो गया, उनसे कारोबार चल रहा है, गरीबों का भी पेट भर जाता है। इसने हर चीज़ महंगी हमारी कर दी है। ऐसे पेट्रोल किसने महंगा किया? पेट्रोल ज़ाहिर बात है, इसी ने सब चीज़ इसी ने महंगी की है। 10 महीने में पेट्रोल महंगा हुआ है। 150 रुपए लीटर मिल रहा था इमरान खान साहब के ज़माने तो में। अभी 2-3 दिन हो गए, 20 रुपये और महंगा हो गया ना। ज़ाहिर गाल अभी तक तो शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं ना। अभी तक तो कोई हुकूमत नहीं ना आई, अभी तक कोई शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है। वजीर आजम कौन है हमारे मुल्क के? क्या कर रहे समझा नहीं। हमारे वजीर आजम कौन है? शहबाज शरीफ अभी बने नहीं ना, अभी बन गए जी। 10 महीने से हमारे चले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। 10 महीने हो गए, शहबाज शरीफ साहब है वजीर आजम हमारे। अभी कंफर्म नहीं ना है अभी तो। Confirm है जी। ये सारा कुछ कर रहा है, अभी तो इमरान खान ही है ना ऊपर। नहीं जी, इमरान खान कुछ नहीं है इस वक्त पे, शहबाज शरीफ ही सब कुछ है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम तो मजदूर बंदे हैं ये। कुछ चले अब आपको पता लग गया ना कि शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है, तो शहबाज शरीफ साहब ने महंगाई की, क्या कहेंगे शहबाज शरीफ साहब? नहीं, देखो भाई, क्या नाम है, ना मैं उसकी कवर में पढ़ना, ना मैं उसकी कवर में पढ़ना, ठीक हो गया। नवाज शरीफ से बात हो रही है, कारोबारी बंदे हैं ये, उससे गरीब बंदे का रोज रात चलता रहता है। आपका कारोबार उनके कारोबारी होने से कैसे चलता है? कारोबार ज़ाहिर वालों वो कारोबारी बंदे है ये, तो उसने आते ही सारा अपना जो है ना, क्या नाम है, ये महंगा कर दिया, फलाना ये हो गया, ये हो गया, उसके वो उन्होंने किया है ना। पेट्रोल महंगा इन्होंने किया है। किन्होंने? इमरान खान के ज़माने में 150 रुपए का था और अब जो है आप प्राइस देख लो उसकी। इमरान खान से पहले जो 70 का था, 80 का था ना, उसने डायरेक्ट ही 150 कर दिया ना। ज़ाहिर बात है, वो नवाज शरीफ और ये आए हैं ना, उन्होंने जो मायदे लिखे, इन्होंने 250 कर दिया। इमरान खान ने जो मायदे लिखे हुए थे ना, वो तो ये मुआहिदे का बड़ा मसला है जी। ये मुआहिदा आपने कहाँ देख लिया? ज़ाहिर बात है, वो हर बंदा ही जानता हैगा। नहीं देखा कहाँ, कैसे पता कि कंफर्म सही सच्ची बात है? नहीं, ये हर बंदे को ही पता है। खबरों में आप देखो डेली, हर कौन बंदा से चैनल देखते हैं? है। मैं जियो वाला देखता हूँ, लाहौर का देखता हूँ, हर चैनल देखता हूँ घर जाके माशाल्लाह। तो वो मुआहिदा दिखाया उन्होंने? मुआहिदा कहते हैं सारे जो वजीर आज़म, दिखाया? दिखाने की बात नहीं क्या कह सकते हैं हमको, क्योंकि इमरान खान आया ना तो महंगाई हुई है। अब जाने के बाद ज्यादा हो क्योंकि अगर नवाज शरीफ होते ना तो ज़ाहिर गाल है उन्होंने भी महंगाई करनी, पर कारोबारी बंदे हैं वो, गरीब बंदे का सर्कट चल जाता है।
मजा आता है जी। इमरान खान साहब ने कौन से मुआहदे पे साइन किए? खान साहब जरा हमें भी दिखा दें और आवाम को भी दिखाएं, या फिर जो PMLN वाले हैं वो दिखा दें। अच्छा मुझे ये बताएं, शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ, PMLN से आपको ज़ाती हैसियत में कोई एक फ़ायदा हुआ हो? एक फायदा हुआ। आपके लिए क्या किया नवाज शरीफ साहब ने और शहबाज शरीफ साहब? वो तो अपने को लिए करते हैं, हमारे लिए क्या ये है कि हुकूमत के लिए करते हैं। उसके आपको जो एक फ़ायदा उनसे मिला हो, हुकूमत के लिए करते वो भी आपको एक फ़ायदा जो आपकी ज़ाती हैसियत में ये है कि दिहाड़ी बात की है। हाँ। कितनी दिहाड़ी थी पहले? पहले इमरान खान के दौर में ही मेरी 900, अब 1300 रुपये हो गई है। अब 1300 रुपये कब हुई? 1300 रुपये हो गए, 6 महीने हो गए ना। हाँ 6-7 महीने। 6 महीने पहले शहबाज। 4 बच्ची हैं माशाल्लाह जवान, 3 तेरी बच जैसी, 2 छोटी, 1 छोटी है, एक मेरे 8 साल का बच्चा है। तो किराए का मकान है मेरा, 10 हज़ार है महीना देता हूँ मैं किराया, बत्ती का बिल, ये वो सब कुछ जड़ा है ना। वाहिद कफील है और कोई कमाने वाला? और कोई कमाने वाला नहीं। सर फिर हुकूमत से कहे जिसकी भी हुकूमत है महंगाई में कमी करे। शहबाज शरीफ साहब या इमरान खान जो भी है वज़ीर आज़म, जो है ना गरीब बंदे वास्ते जो है ना कोई प्यार मोहब्बत करें। ये जो महंगाई है इसको घट करें, जो है ना जो पेट भर के बच्चों का रोटी पानी खवा सके तो अपने बच्चों को जो है ना सिस्टम चला सके। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? मोहम्मद शफी। शफी साहब, ये बच्चे का क्या नाम है? रेहान। रेहान। सर गैस मजीद महंगी कर दी। बेटे अब हालात ऐसे हैं कि सारे ही खाने पीने वाले हैं, कोई किसी को माफ़ी देने वाला नहीं है। कुछ पिछली हुकूमत जो गई है उसने भी जो कुछ किया है वो भी सबके सामने है कि इतने अरबों रुपया उसने कर्जा लिया है, कोई एक ईंट कहीं दिखा दे कि कहीं उसने लगाई है। काफ़ी अंडरपास बने, काफ़ी सड़कें बनी, लेकिन इश्तिहारात पे पैसे मैं इमरान खान की हुकूमत की बात करूँ, उसमें क्या बना है? सर उसमें काफ़ी अंडरपास अभी भी हो रहा है डेवलपमेंट का काम, लेकिन इश्तिहारात नहीं लगाए गए। नहीं बेटे, सिवाय इसके ये कि गुलाब देवी के पास बना है और एक वो फिरदौस मार्केट के पास, समनाबाद वाला भी बना। वो अभी बन रहा है ना, वो तो अभी बन रहा है। तो इसके अलावा ये 2-3 अंडरपास में कितना पैसा लग गया होगा? 10 करोड़ 20 करोड़ रुपया लग गया होगा। अरबों रुपया जो आया वो किधर गया है? बात तो ये है ना कि ये 2-3 अंडरपास बन गए, 2-4 सड़कें बना दी, कितना पैसा लग गया होगा इन पे? तो ये वो भी खाने वाले थे, कमी ये भी नहीं कर रहे, ये भी वैसे ही खा रहे हैं। तो ये बेटे बस ऐसे ही चल रहा है। आपको लगता है कि जो कर्जा लेके प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए वो ऐसे बनाने चाहिए जिनसे आमदन में इजाफा हो ताकि हम कर्जा उतार सके, या कंजप्शन के प्रोजेक्ट्स करने चाहिए? नहीं बेटे, सबसे पहले हमें अपनी इनकी एजुकेशन चाहिए, हमें अवेयरनेस चाहिए कि जब तक हम में अवेयरनेस नहीं आएगी हम अपनी इंडस्ट्री को ग्रो नहीं करेंगे। तो ये अंडरपासेस वगैरह होने चाहिए, ये ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले हमें अपनी इंडस्ट्री ग्रो करनी चाहिए, इंडस्ट्री पे तवज्जो देनी चाहिए ताकि हमारा कुछ काम चले, कोई गरीबों को रोज़गार मिले। सर 350 रुपए कमाने वाला शख्स कैसे अपने बच्चों को पढ़ाए? बेटे 350 के 1000 रुपए वाला भी नहीं पढ़ा सकता। 350 तो बहुत बात की बात है। मुझे दुनिया का कोई इकोनॉमिस्ट आके बता दे कि अगर किसी आदमी की 25 से 30 हज़ार रुपया तनख्वाह है और वो मुझे 2-3 टाइम का खाना सिर्फ खिला के दिखा दे, मैं उसका गुलाम हो जाऊंगा। जो हालात इस वक्त हमारे मुल्क के जा रहे हैं, कोई ऐसा चांस ही नहीं है कि गरीब आदमी सर्वाइव कर सके। क्या मैसेज देंगे अवाम? बेटे क्या मैसेज देना है, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान है। हमारी अवाम में भी अवेयरनेस नहीं है, तो वैसे ही हमारे ऊपर हुक्मरान भी अल्लाह ताला ने मुसल्लत किए हुए हैं। ये तो अल्लाह ताला को अपनी रहमत करे तो शायद कोई मेहरबानी हो जाए, वरना कोई चांस कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? तारिक महमूद। सर गैस मजीद महंगी कर दी। गैस तो इस टाइम तो महंगी होती है, 200 और महंगी कर दी है, और मंजूरी दे दी है और महंगी कर दी। ये तो जुल्म है ना, फिर जुल्म नहीं है, गरीब आदमी क्या करेगा, कहाँ से रोटी खाएगा, रोटी नहीं पूरी होती तो फिर क्या करें। तो सर रोज़ के कितने पैसे कमा रहे हैं? बचत बताइए। बचत 200 300 400, ये भी काम का तो बिल्कुल ही खत्म। घर में कोई और कमाने वाला है? कोई करमाने वाली कितने? 3 बेटियां हैं बस। बेटियां हैं, तो सर किस तरीके से गुजारा हो? बस गुजारा हो रहा है लागे। सर 400 रुपये या 500, चले अगर हम ये सपोज कर लें आपने 500, रूटीन में कितने कमाते हैं? रूटीन में कभी 600, कभी 700, कभी 800, बस इतना ही। अगर आपके पास 800 रुपये हो तो आप घर जाते हुए क्या राशन लेके जाते हैं? आटा लेके जाता हूँ और चीनी की वगैरह, यही बस ख़त्म हो जाता है अगले दिन फिर वही। तो सर ये वोट किसको दिया? वोट तो हमारा पक्का नवाज शरीफ का है। तो महंगाई किसने? महंगाई इमरान खान ने की। कैसे? वो जो MS से कर्जा लिया उसने, पहले तो महंगाई नहीं थी, जब नवाज शरीफ के दौर में आटा 60 रुपये किलो था,
चीनी 50 रुपये 60 रुपये किलो थी। अभी किसका दौर? अभी भी तो उनका ही है, लेकिन वो दो हुकूमतें नहीं है। पंजाब में उसकी है, इमरान खान की है, सूबा सिंध में उसकी है हुकूमत। 3.5 साल में सिर्फ विफाकी हुकूमत महंगाई कंट्रोल करती है ना। 3.5 साल में इमरान खान ने कैसे इतनी महंगाई की? आपको पता ही नहीं, हमें हम क्या बता सकते। मुझे आप ये बताएंगे कि इमरान खान ने महंगाई की कैसे? IMF वाली स्टोरी। महंगाई इसलिए की है ना कि जब उसके पास खजाने में पैसे नहीं थे तो उसने कर्जा लिया है। आगे मजीद कर्जा था, पहले भी कर्जा ही था ना। तो एक एक बच्चे के साथ सभी अभी हिसाब लगाए तो एक बच्चा जब पैदा होता है उसके 20-20 लाख रुपया कर्जा उसके सिर पर है। वो अभी पैदा नहीं हुआ तो कर्जा उसके सिर पर है। तो सर जब कर्जे में से कर्जे की रकम किस्तों कर्जे की ये किस्त बहुत देंगे मुश्किल है, ये मजीद खराब होगा, मजीद मुल्क का ना वो खराब होगा बस। तो अभी तो ये फिर जा रहे हैं IMF के पास, अब क्या होगा? अब और कर्जा लेंगे और कर्जा ही हो जाएंगे, मुल्क तो बिक गया है बस। तो पेट्रोल किसने महंगा किया? हैं पेट्रोल किसने? और भी सब ने ये बात ये है कि हुकूमतों कोई भी है, मैंने ये खान से लेके अभी तक हुकूमतें देखी हैं, जिसने भी आया ना वो अपने घर पर है। अयूब खान आया उसने भी भरा है, ज़िया आया उसने भी भरा है, भुट्टो आया उसने भी भरा है। कोई ऐसी हुकूमत बता दें जिसने अपने घर नहीं बनाए। तो अमीर है ना। हाँ तो फिर सर मुझे ये बताएं कि सबसे, क्योंकि आपने काफ़ी कहा जैसे दौरे हुकूमत देखे, बेहतर दौरे हुकूमत थोड़ा किसका? सबसे मैंने बेहतर हुकूमत जो है ना वो आपको बताऊँ अयूब खान की देखी है मैंने। जो चीज़ वो कहता था वो करता था। अगर 1 रुपया किलो घी है ना तो वो रुपये ही था। सुबह अगर उसने ऐलान कर दिया ना रात को कि 1 रुपया चीज़ होनी थी तो वो रात को 1 रुपये ही थी, ज़्यादा नहीं महंगी हुई थी। अभी तो आपको पता ही, आप जुबान के पक्के थे यूँ। हाँ जी हाँ जी। सर भी कुत्ता कुत्ता करके निकाल दिया है। हाँ जी, क्या जी देखो वाला बात है। जैसी आवाम वैसे हुक्मरान, सही है ये बात? बिल्कुल सही है। कैसे? तो सोलान है, हमारे खर्चे हमारी ज़रूरतें, ये देखे ना टीवी है और नेट आ गए हैं, लड़कियां लड़के नेट देख रहे हैं, वो अखराजात ही है ना, तो ज़्यादा मजीद दिमाग। टीवी और नेट ने खराब कर दी, महंगाई बढ़ा दी। हाँ तो और क्या किया है। कितने पैसे खर्च हो जाते होंगे आपके हिसाब से टीवी और नेट पे रोज एक इंसान के, जिसने बहुत ही टीवी देखना है और बहुत ही कोई मेरा ख्याल है कम से कम एक आदमी जो है ना जिसके साथ टच मोबाइल है वो 200-300 रुपया रोजाना खर्च करता है मोबाइल कार्ड पे। हाँ तो सर घर में क्या पता उनके वाईफाई लगा हो? तो क्या पता है सारे मिलके एक ही ऐसे लग जाता है, वाईफाई ऐसे लग जाता है। खत्म कर देना चाहिए। हाँ तो ये ख़त्म करें, महंगाई को कंट्रोल करें, गरीब आदमी सुकून से जिएगा। सर शहबाज शरीफ साहब को कोई मैसेज देंगे? किसको? शहबाज शरीफ साहब कौन पसंद है? शहबाज शरीफ पसंद है या नवाज हमारे शरीफ? इलाके के यहाँ के ना वो समझ लें कि चेयरमैन है। चेयरमैन है जी शहबाज शरीफ साहब, तो उनको मैसेज दे दें एक जरा, अगर आपकी वीडियो देखें। मैं शहबाज शरीफ को ये मैसेज देता हूँ कि महंगाई को कम करें, गरीब आवाम को खुशहाली दें, बस ये मैसेज है। एक अच्छी बात जो आपको लगती हो शहबाज शरीफ? अच्छी तो कोई भी नहीं है, सारी बुरी है। सारी बुरी है। हाँ अच्छी कोई बात नहीं है, अच्छी कोई बात नहीं है। बस वोट उसका जिस जो काम करेगा आवाम के लिए। जो अच्छा करेगा वो अच्छा है, बस ये मैं कह रहा हूँ। बस अगला वोट किसको दें? अगला वोट कोई नवाज शरीफ को दूंगा। वोट नवाज शरीफ साहब को, ये काम करे ना करे कोई काम करे या ना करे, मैं तकरीबन ज़्यादा दौर से अभी तक जहाँ से ये नवाज शरीफ वज़ीर आला था पंजाब का, उस वक्त से लेकर आज तक नवाज शरीफ के साथ हूँ। हाँ जी हाँ। नवाज शरीफ साहब को एक मैसेज भी दे दें, अगर लंदन में बैठ के आपको मैं मैसेज क्या देता हूँ, मैं मुजतबा साहब को रोज़ाना मिलता हूँ वहाँ से जाके। अभी तो वो लंदन में है ना, आप क्या पैगाम देंगे? लंदन में तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पैगाम दे देना। मैं यही कहना चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करें बस। हाँ चलें जी, महंगाई कंट्रोल कर दें, आपको तब से सपोर्ट करें। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। जब आप वज़ीर आला पंजाब हुआ करते थे नवाज शरीफ साहब, तब से ये साहब जो है आपको सपोर्ट करे। अस्सलाम सर, क्या नाम? मेरा नाम बाबर बशीर। बाबर साहब, गैस और महंगी कर बस जी इनके काम ही है ये इनके बस में नहीं रहा अब। क्यों? क्योंकि देखें ये खुद इतने, ये जो हमारे लीडर हैं ये खुद इतने याश परस्त हैं कि वो ना कोई भी काम है ना वो अपने लिए उनके सही है और आवाम के लिए उनका कोई ख्याल नहीं है। अवाम क्या क्या याशियाँ करते हैं हमारे हुक्मरान? हमारे हुक्मरान उन्होंने देखें कि सारी अपनी जायदादें बाहर कन्वर्ट की हुई हैं और वो मुल्क में इधर देख लें डॉलर का बहरान आया हुआ है और मसली वो उधर और वो क्या कर रहे हैं उधर इधर उधर जो हैं वो जो मनी चेंजर हैं उनको वो छापे मार रहे हैं FIA की टीमें कि जी वो डॉलर कहाँ हैं, डॉलर आप इतने दें, पासपोर्ट पे आप इतने दें, आप इतने लें, और जो दे के जा रहा है उसका रिकॉर्ड रखें, जो नहीं दे वो जो लेके जा रहा है उसका भी रिकॉर्ड रखें
और जो लेके जाता है उसका भी रिकॉर्ड रखे। तो सर इसहाक डार साहब कैसे control करेंगे? इसहाक डार साहब जब आए थे उस वक्त तो कंट्रोल हो गया था कि ऐसे लग रहा था कि अब मुल्क दिवाली होने से बच जाएगा, लेकिन मुझे नहीं नज़र आ रहा कि मुल्क ये दिवाली। कैसे लगा आपको कि कंट्रोल हो गया? वो इस वक्त लगा कि जब वो एक चीज़ है डॉलर है, वो एकदम जब नीचे आया तो वो देखा कि उसको लगता है कंट्रोल होना शुरू हो गया है। सर मसनूई कंट्रोल था ना? वो मसनूई कंट्रोल था। अब देख लें, अब गेम जो है अब वो नेट पे आ रहा है रेट 228 रुपये और वो मार्केट में 254 पे बिक रहा है। सर सोने के हिसाब से अगर सोने के साथ या पेट्रोल के साथ जो है प्राइस 262 रुपए का है ओपन मार्केट। हाँ जी बिल्कुल, इससे भी ज़्यादा जो 300 तक चला जाना है। तो सर गैस आती है? गैस बिल्कुल इधर तो तकरीबन मेरा ख्याल है 10 दिन हो गए हैं, बिल्कुल ये कतरा भी नहीं आ रही। और लोग यहाँ तो वो बिजली पे वो मीटर लगाए हुए हैं, उन्होंने वो हीटर लगा के गुजारा कर रहे हैं, या वो सिलेंडर महंगा तरीन LPG गैस इस्तेमाल कर रहे हैं। गैस और महंगी हो गई, बिल कितना आता है? बिल तो तकरीबन देखें जी, हाँ पहले तो आता था थोड़ा कम, अब तो क्योंकि सर्दी है खपत बढ़ गई है, लेकिन बिल नहीं रुका। नई गैस आ रही, बिल आ रहा है। कितना बिल आता है? देखें बिल जो है वो आम तौर पे जो 400-500 रुपये तो आता है, फिर ना भी गैस आए तो। गर्मियों में 400-500 रुपए आता है जब गैस होती है, और सर्दियों में गैस ना होने के बावजूद 400-500 रुपए आ रहा है। सर वोट किसको देते हैं? मैंने नून लीग को दिया वोट। तो खुश हैं फिर कारकर्दगी से? नहीं, मैं खुश नहीं हूँ, मैं ना PTI से खुश हूँ ना नून लीग से खुश हूँ। तो वोट अब किसको देना है? वोट अब देखें, कोई अल्लाह का सही बंदा है तो उसको दे देंगे। अगर ना आया अल्लाह का कोई सही बंदा तो इनमें से किसी को देंगे? नहीं, फिर हम घर में ही रहेंगे, फिर नहीं वोट डालने का। की बात है, बता दें जरा फिर नून लीग को। हाँ जी, नून लीग को बता दें जरा फिर। नहीं नून लीग को क्या बताना ये है। काम कर ले, नहीं तो फिर वोट नहीं देना खाए बैठ। हाँ ठीक है, इंशाल्लाह हम घर ही बैठेंगे फिर तो। अगर शहबाज शरीफ साहब देखे तो आपने खुद बता दिया। ठीक है, देखें हम दोनों कोई भी पार्टी नहीं इस वक्त। देखें वो कह रहे थे, वो तो PTI वालों ने कहा था कि जी हम जी आपने अपने लीडर को तो बता देना ताकि महंगाई कम करें आप। देखें वो महंगाई तो देखें ना, जिस तरह ये चाहें तो कम कर सकते हैं। अब देख रहे हैं लोग, काम बिल्कुल नहीं है, सर्दियाँ हैं, धुंधें पड़ रही हैं, मजदूर। आपने ना कैमरे की आंखों में आंखें डाल के बताना जी महंगाई कम करें, नहीं तो वोट नहीं मिलना। ठीक है, महंगाई कम करें जी बिल्कुल, नहीं तो हम किसी ने भी वोट नहीं डालना। फिर आप लोगों ने ना वोटों के डब्बे ले लेके फिरना है। आवाम को जब तक रिलीफ नहीं मिलेगा तब तक वोट किसी को नहीं मिलेगा। कुछ कहना चाहेगी आवाम से? देखें जी, मैं तो कहता हूँ कि बस इसका ना जो भी निज़ाम चाह रहा है ना इस वक्त, सबसे ज़्यादा मजदूर तबका इस वक्त मुतासर है, क्योंकि जो दिहाड़ीदार बंदे हैं ना वो इस वक्त बिल्कुल फारग हैं, धुंधें पड़ी हैं, सुबह आँख खुलते 11 बज जाते हैं और 4-3 बजे के बाद वैसी शाम हो जाती है। ठीक है कि नहीं? लेकिन देख लें बाहर के मुल्कों में अगर लोग काम ना भी करें ना तो उनको वो महाना देते हैं पैसे, ताकि वो लोग चोरियाँ चकोरियाँ ना करें, डाके ना पाकिस्तान में अगर महाना मिलेंगे तो सारे काम धंधा छोड़ के नहीं बैठ जाएंगे? नहीं, ये तो नहीं होता, लेकिन उसका हर एक काम का ना उनको एक सिस्टम में आना पड़ता है। जिस तरह बाहर का खुद कार सिस्टम है, उनको पता है कि ये बंदा अगर फारग रहेगा, नहीं इसको मिलेगा तो लाजमी बात है ये कुछ करेगा, फिर तो जो करेगा नजायज़ काम करेगा। तो इधर तो देखें ना, इधर तो मैंने देखा है कि वो बेनज़ीर का फंड भी बड़े बड़े अमीर लोग खा रहे हैं। हाँ जी, को उसको बनाया हुआ कि जी मैं, दिली तौर पर वो होंगे ना गरीब? हाँ जी, हाँ जी, नहीं वो गरीब तो नहीं है, नीयत के गरीब होंगे। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? शहबाज। सर गैस महंगी कर रहे हैं वैसे, गैस महंगी है, बिजली भी महंगी। लेकिन गैस और महंगी कर दी ना। क्यों? हुकूमत ने कहा है 406 रुपए फी MMBT इजाफा कर। तो गैस महंगी होगी तो गरीब आदमी कहाँ से रोटी पानी खाएगा? तो रोटी बनाने के लिए आटा मिल रहा है? हाँ, कहाँ से मिल रहा सारे दे रहे हैं, शार्ट ब्लैक में दे रहे है? कितने रुपए किलो? दे रहे 120-25 रुपए किलो। 120-130 रुपए किलो। तो पुलिस कार्रवाई नहीं करती ब्लैक वालों ने? कहते रोटी देते हैं 20-25 रुपए की रोटी दे रहे हैं बैक साइड में। फिर कैसे गुजारा होता? बस देख लें 600-700 रुपए दे रही है गरीब आदमी, इतने में ही करता है। वोट किसको देते? बोर्ड सब चोर ही हैं। पिछला 2018 में किसको दिया? लब्बैक। तो आपको लगता है लब्बाइक अगर आ जाए तो बेहतरी आ सकती? हाँ, कैसे? अच्छी बात। अच्छी बात है। चले मुझे ये बताएं, अगर तहरीक लब्बैक आ जाती है, वजीर आजम बना दिया जाए साद रिजवी साहब को, तो आटा कितने रुपए मन मिलेगा? मन कितने में मिलेगा? कम होगा कि महंगा मिलेगा? कितने का मिलेगा? मन आटा कितने का मिलेगा? 1000 रुपए का तो होना चाहिए। 1000 रुपए का हो जाएगा? जरा कहें फिर साद रिजवी साहब को कि 1000 रुपए का आटा देना है अगर वजीर आजम बने। अच्छा मुझे बताएं, पेट्रोल कितने का लीटर मिलेगा साद रिजवी के जमाने में? ऐसे भी 20-30 रुपए।
नाज़रीन 20-30 रुपए का लीटर मिल रहा है जी पेट्रोल। कितने का पेट्रोल मिलेगा साद रिजवी अगर वजीर आजम बने? साद रिजवी बन जाए तो आप क्या चाहते हैं कौन बने वजीर आजम? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ साहब। चले जी, नवाज शरीफ साहब ने पेट्रोल सस्ता कर लें। उम्मीद तो है। अभी नॉन लीग में से कोई भी है, सिर्फ नवाज शरीफ? नहीं, नवाज शरीफ ही। नवाज शरीफ साहब। तो शहबाज शरीफ साहब ने इतना पेट्रोल महंगा क्यों किया? क्योंकि इनकी आपस की लड़ाइयाँ नहीं खत्म हो रही, इस वजह उसकी लड़ाइयों से कैसे पेट्रोल? मतलब कि कोई रहा हो गया, कोई पकड़ा गया, कोई छूट गया, कोई इसका पेट्रोल से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक इसलिए है कि ताकि ये वो पंजाब हुकूमत में भी बैठने नहीं दे रहे, ताकि वो बैठेंगे तो कुछ काम करेंगे ना। पंजाब हुकूमत में बैठने नहीं दे रहे इसलिए तो आप चाहते हैं पंजाब में हुकूमत नवाज शरीफ साहब की? जी जी, सर आटा काम करने देना। विफाकी हुकूमत महंगाई करती है, आटा महंगा हुआ, विफाकी हुकूमत ने कंट्रोल करना है, शहबाज शरीफ साहब ने खुद कंट्रोल करना है। पेट्रोल महंगा, हर चीज़, तो पेट्रोल इतना महंगा हो गया जरा फिर पूछे ना। वही तो बता रहा हूँ कि ये आपस की लड़ाइयाँ नहीं खत्म हो रही, अवाम तो कहीं है ही नहीं। अगर वो आपस की लड़ाइयाँ की खत्म होंगी तो फिर भी अवाम की तरफ कोई ध्यान होगा, तो फिर उस वजह से होगा ना। तो कितने का मिलेगा अगर नवाज शरीफ साहब आ रहे? पहले तो आवाम की तरफ होता था ध्यान, अब जब से इमरान खान आया ना सियासत में तो अब इनका ध्यान ही नहीं आवाम में, इनकी आपस में लड़ाइयाँ नहीं खत्म होती। आजकल सारा ध्यान खान साहब पे है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी आपस की लड़ाइयाँ नहीं खत्म होती। सियासत में वो आ जाए, वो रहा हो गया, वो छूट गया, वो नायल हो गया, वो अहल हो गया, वो केस ख़त्म हो गया, वो पकड़ा गया, ये सारी चीज़ें ये हैं। अवाम तो है ही नहीं कहीं, इनका ध्यान ही नहीं अवाम की तरफ। तो आवाम क्या करे? अवाम क्या कर सकती है? अवाम तो कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि बेबस है अवाम। अवाम तो पिसके रह गई है, कारोबार है नहीं, सारे ख़त्म हो गए कारोबार। अपने लीडर से कुछ कहना चाहिए? किसके लिए? अपने लीडर से, नवाज शरीफ साहब को। नवाज शरीफ से यही कहना चाहूँगा कि वापस आके खुदारा वापस आ जाएं और भाग दौड़ संभालें मुल्क की, ताकि इस्तेकाम हो मुल्क में। गैस महंगी होगी? लग तो यही रहा है। हो गई है सर, मंजूरी दे दी। वही तो कह रहा हूँ कि होगी, कम तो कोई भी नहीं होगी फिलहाल। तभी ये ज़्यादा हुई है, ज़्यादा ही मैं कोई, ज़्यादा प्राइस कर दिया। वो तो सब चीज़ों के होंगे क्योंकि ये इस्तेकाम नहीं है। वो IMF से भी ब्लैकमेल हो रहे हैं, तो मजबूरी है, तो वो सारा मजबूरी से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो हो जाना चाहिए इलेक्शन। इलेक्शन के लिए भी एक 100 रुपया चाहिए, वो है नहीं इनके पास। सर इलेक्शन से फंड्स आएंगे ना, फिर अगर मुस्तहकम हुकूमत होगी तो कोई मुल्क हम पे यकीन करेगा। मुझे इलेक्शन नज़र नहीं होते। चाहते हैं हो कि ना हो? इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन मुझे नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि होगा। चले जी, लगता नहीं है होंगे, लेकिन चाहते हैं कि हो। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? वालेकुम जी। सर गैस मजीद महंगी कर दी। जी गैस महंगी जो कर दी है वो तो कर ही दी है, लेकिन ये जो घरेलू गैस है वो ही यहाँ नहीं आ रही। गैस ही महंगी कर दी है। मैं कहता हूँ महंगी तो कर दी है, लेकिन आए तो सही। मकसद ये है कि जब हम पैसे भर रहे हैं, एक चीज़ हमारे पास आती नहीं, बिल का आएगा। सर बिल कितना आया लास्ट? बिल तो काफ़ी बिल आते हैं, अब आपको क्या बता सकते हैं हम? बता दें, कोई बात हैं? बता दें, सार सबका यही हाल है। मैंने कहता हूँ कि ना जलाने पर भी अगर 1000 रुपया एक बंदे को आ जाए तो उसको परेशानी है। तो कहने का मतलब ये है कि लोग लकड़ियाँ जला कर अपना वक्त पास कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हुकूमत कोई काम नहीं कर रही, कोई भी हुकूमत कोई काम नहीं कर रही। वोट किसको दें? देखें, हम पंजाबी हैं, यहाँ लाहौर के हैं, तो तकरीबन हर आदमी का ध्यान जो है रिहायशी लोगों का वो नवाज शरीफ ही टारगेट होगा, क्योंकि वो यहाँ का बच्चा है। तो हमें यकीन है कि वो यहाँ को ना कुछ खूबसूरत बनाएगा, क्योंकि उसका घर है। सर खूबसूरत अगर बना दिया जाए, आटा ना फराहम किया जाए तो बेहतर है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि उनके दौर में तो रोटी मिल रही थी ना। अभी उन्हीं का दौर है सर, अभी भी उन्हीं का दौर है। अभी भी उनका दौर तो है, लेकिन ये गलत आया है ना, उसे गलत आया, उसे वहाँ फिट किया गया है जहाँ से वो ना निकल सकता है ना रह सकता है। खुद फिट हुए ना। कहने का मतलब ये है कि हालात ही इंसान को ऐसी बातों में फंसाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बड़ा अच्छा वक्त जा रहा था। 2018 के बाद आवाम ने मुश्किलें और परेशानियां ही देखी हैं तकरीबन। 2021 में जब दोबारा से हुकूमत चेंज हुई, उससे पहले पेट्रोल कितने का था और अब पेट्रोल? कहने का मतलब ये है कि जो वक्त गुजरा है, हमें तो 70 रुपए याद है। पेट्रोल किस दौरे हुकूमत में सबसे ज्यादा महंगा हुआ है, आपने ये बताया? ये जो दौर जा रहा है,
ये किसका दौर है? ये जिन लोगों के पास से आकर किसी और के पास मुंतकिल हुआ है, लेकिन जो पिछला दौर गुजरा महंगाई वहीं से शुरू हुई है। तो मुझे ये कहिएगा, अपने सूबे का बच्चा से ज़्यादा बेहतर काम अगर दूसरे सूबे का बच्चा या दूसरी बरादरी का बच्चा करे, उसको आप वोट देंगे या अपने बच्चे को ही दे रहा है वोट? कारकर्दगी की बुनियाद पे वोट दिया जाना चाहिए। लेकिन जो नज़र आ रहा था, दिया जाना चाहिए बेटे, जो नज़र आ रहा था उसमें हमारा मुल्क संवर रहा था। बाहर से आने जाने वाले लोगों को परेशानी नहीं थी। ये जो लॉन्ग रूट सड़कें बनाई गई हैं, इस पर काफ़ी आसानी लोगों को ही है। कुछ वक्त में इन लोगों ने चुंगियाँ भी गरीबों को माफ़ की हैं, लेकिन उसमें अमीरों को ही फ़ायदा हुआ है, गरीबों को नहीं हुआ। क्योंकि वो जो कारकुन वहाँ के हैं वो खर्चे पानी लेकर फिर ही जान छोड़ते हैं, बगैर कुछ लेने से जान नहीं छोड़ते। चाहे आपको चुंगी पास है चाहे नहीं है, चाहे चुंगी पास है चाहे नहीं है। सर, कितनी ज़रूरत है मुल्क को बेहतरी की तरफ लाने के लिए? किस सियासतदान की अगला वज़ीर आज़म कौन होना चाहिए? कहने का मतलब तो ये है कि लोग कहते हैं कि जी हम इसे मदीना की रियासत बनाएंगे, तो यहाँ तकरीबन पहले के मुताबिक उरयानी ज़्यादा फैल गई है। किसने फैलाई? अवाम ने फैलाई है, किसने फैलानी है? तो फिर सियासतदान तो बेहतरी लाने की कोशिश। जब किसी को हकूक दिए जाते हैं वो फिर इस्तेमाल करता है। सर, कौन कौन से हकूक इमरान खान साहब ने अवाम को दिए? ओहो, मैं कह रहा हूँ कि एक हकूक तो यही है महंगाई का। इससे आगे आप खुद समझे, आप भी फिरते गए। नवाज शरीफ साहब को क्या कहेंगे? मैं नवाज शरीफ साहब को कहूँगा अस्सलाम वालेकुम, अगर हो सकता है तो आप दोबारा पाकिस्तान पर मुसल्लत हो। मुसल्लत हो? हाँ बिल्कुल, जी, दोबारा मुसल्लत हो जाए पाकिस्तानी अवाम पे अगर हो सकता है। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। महंगाई बेहद ज़्यादा है, गैस जो है आ नहीं रही लेकिन बिल ज़रूर आ रहे हैं, तो ये इसकी क्या वजूहत है ये भी हुकूमत ने ही बताना है या इदारों ने बताना है। आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें, हमें बताएं कि अब क्योंकि गैस भी महंगी कर दी गई है, इसके हवाले से आपके क्या एहसासात है, क्या कहेंगे इस हवाले से कमेंट्स में हमें ज़रूर मुतला करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।